Good morning, viewers. Yesterday we were learning about grammar. What is grammar? We have learned what is grammar. Then we learned need of grammar, need of studying grammar. Thirdly, we understood and learned types of grammar as learners grammar, teachers grammar, linguistic grammar. These things we learned yesterday. Now let us see that in how many departments or parts of grammar are there. We should try to understand the parts or departments of grammar. Parts oblique departments of grammar. Now there are mainly four parts of grammar in English language. There are four parts of English grammar in English language. There are four parts of English grammar. There are four parts of English grammar. They are pahla orthography. In Hindi it is called वर्ण विचार. Second, etymology. शब्द विचार. Third, syntax, वाक्य विचार. And fourth,
प्रोसीडी, छंद, सार. In this way, we see that there are 4 parts of a grammar. It means there are 4 departments which we should learn while reading or studying a grammar. First of all, orthography. Orthography deals with the letters, alphabets, and their combination into words. Further, combination into words, the basic sounds which cannot be broken further are called letters. मतलब कि ऐसे साउंड जिनको हम और आगे नहीं तोड़ सकते हैं उनको हम लोग लेटर्स कहते हैं. इट इज द सिस्टम ऑफ स्पेलिंग इन ए लैंग्वेज. ये ऑर्थोग्राफी जो है किसी भाषा में शब्दों को कैसे स्पेल किया जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, इसके बारे में बताता है. फॉर एग्जाम्पल, let us see a word in Hindi, Rani. Rani is a word. Now this Rani word is made up of 4 letters like Ra plus A plus Na plus E. This Rani word is made of 4 letters or alphabets. All the 4 alphabets or sounds are called letters. Letters are the smallest unit of speech. By adding all these letters, different kinds of words and sentences are made. So this is called orthography. In Hindi it is word vichar, which helps us in making the words and sentences. Second is etymology. Etymology means shabd vichar. In this part of grammar, we study the origin and history of words and their meaning. किस शब्द का ओरिजिन कैसे हुआ है, कैसे वह शब्द बना है, और उसके बारे में हम डिटेल में इस पार्ट ऑफ ग्रामर यानी कि एटोमोलॉजी में पढ़ते हैं. दूसरे शब्दों में एटोमोलॉजी deals with the inflection, classification and deviation of words. It means etymology gives the total result to how to make a word, how to its pronunciation, how to classify, and everything which is needed about the word is given in this part of grammar, which is named etymology. The third part is syntax. Syntax, we must be aware of this word. It is normally talked about and we read in classes. इसे हिंदी में वाक्य विन्यास कहते हैं. Syntax is the way that tells how to put words and phrases together to form sentence. Syntax वह एक तरीका है, एक पार्ट ऑफ ग्रामर है, कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स है, जो हमें बताता है कि कैसे
हम शब्दों को एक साथ रखकर, फ्रेजेस को एक साथ रखकर और उनसे सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। ये शब्दों के किसी वाक्य में अरेंजमेंट के बारे में बताता है। ये बताता है हमें कि कौन कौन सा शब्द फर्स्ट में रहेगा, उसके सेकंड में कौन सा शब्द रहेगा और थर्ड में कौन सा शब्द रहेगा। इस तरह यह शब्दों के प्लेस निर्धारण करने में हमारी सहायता करता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सी a word, he is a boy। he is a boy जो है एक सेंटेंस है और ये सही सेंटेंस है। तो इसमें ये सिंटेक्स जो है ये हमें बताता है कि पहले ही रहेगा, फिर वर्ब इज रहेगा और तब ऑब्जेक्ट या दूसरे वर्ड्स रहेंगे। इस तरह सिंटेक्स हमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ जानकारी देता है और तब हम सही और करेक्ट तरीके से सेंटेंसेस, पैराग्राफ, एसे या स्टोरी जो भी हो हम लिख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग को हम लोग छंद शास्त्र कहते हैं। तो छंद शास्त्र में तो नाम से ही क्लियर हो जाता है कि छंद शास्त्र जो है वह कविता या वर्स के बारे में, मेनली कविता के बारे में होगा। छंद शास्त्र में यानी कि प्रोसीडी में हम लोग साउंड, रिदम, जो पोएट्री या वर्स में होना चाहिए उसके बारे में पढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट डील्स विथ द लॉज ऑफ पोएट्री और वर्सेस। प्रोसीडी जो है वह नियम को और उनका उपयोग कैसे किया जाए कविता लिखने में या गद्य लिखने में, इसके बारे में बताता है। इस तरह से ये चार जो हैं पार्ट्स ऑफ ग्रामर हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। हिंदी लैंग्वेज में भी सेम चीज है, उसमें सिर्फ एक प्रोसीडी नहीं पढ़ा जाता है। बाकी तीन जो पार्ट हैं वो हिंदी में भी पढ़े जाते हैं ताकि हम सेंटेंस, शब्द, सेंटेंस और दूसरे रिक्वायर्ड चीजों का निर्माण कर सकें। तो इस तरह से व्हाट इज ग्रामर का जो टॉपिक है वो आज कंक्लूड हो गया। इसके बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं या और कुछ पूछना चाहते हैं तो हमको कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट के बाद हम आपको उसके बारे में पूर्ण जानकारी दे देंगे। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। आगे हम लोग थोड़ा, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, वर्ड्स के बारे में डील करता है एटोमोलॉजी। तो शब्द के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि कोई भी चीज जो हम बोलते हैं वह शब्द ही होता है। बगैर शब्द के हम कुछ व्यक्त नहीं कर सकते, कुछ बता नहीं सकते और हम यह जान भी नहीं सकते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं और सुनने वाला उसका क्या अर्थ निकाल रहा है। इस तरह से हमें वर्ड्स पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वर्ड्स अगर नहीं रहेंगे तो हम लोग फिर से आदिम युगों में चले जाएंगे और न बोल पाएंगे, न लिख पाएंगे, सिर्फ हुंकार से, इशारे से बात कर पाएंगे। ऐसे परिस्थिति में वर्ड्स का इंपॉर्टेंस जो है वह बहुत बढ़ जाता है। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है वर्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। ये टॉपिक है।
वर्ड्स एंड क्वालिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है वर्ड। तो लेट अस सी व्हाट इज ए वर्ड। वर्ड क्या है? तो वर्ड को कई तरह से डिफाइन किया गया है। एक सिंपलेस्ट डिफिनेशन है इसका, ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स ऑब्लिक alphabets is called a word। सिंपल सा डिफिनेशन है, वर्णों के मेल से यानी कि लेटर के मेल से ही शब्दों का निर्माण होता है। दूसरा इसका डिफिनेशन है, A word is a single unit of a language, unit of a language which means something and can be spoken or written। ये दूसरा डिफिनेशन है वर्ड का। ए वर्ड इज ए सिंगल यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज विच मीन्स समथिंग एंड कैन बी स्पोकन और रिटन। एक और डिफिनेशन इसके साथ हम आपको ऐड कर देते हैं इसमें, थर्ड डिफिनेशन जो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, वो है वर्ड्स आर पेज on which ideas are hung। थर्ड डिफिनेशन को थोड़ा ध्यान दीजिए। थर्ड डिफिनेशन जो है वो कह रहा है कि वर्ड्स आर पेज ऑन विच आइडियाज आर हंग। इसका मतलब यह है कि शब्द वे आधार हैं जिस पर विचार आधारित होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि बिना शब्दों के हम अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। Therefore, we must know words, and apart from it, we should know how to use the words correctly। If we don't use the words correctly, it will become a very big mistake, and telling something we will tell other thing, and that will not give the required result in our life. So for a better and happier life, we must work hard and use the word wisely and selectively। थैंक यू। आज बस इतना ही, फिर कल